हर बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। तारीफ है लबों पर, चाहत है इसकी दिल में, इकबाल तेरी अजमत हर आदमी के दिल में। तारीफ है लबों पर, उल्फत वतन से रखना इकबाल का है नारा। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा हमारा। मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तेरा नशे मंतसर सुल्तानी के गुम्बद पर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। मंजिल तलाश कर, मंजिल तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। खालिक की है तलाश तो खोज अपने आप को, सीने में जो छुपा है वो गोहर तलाश कर। खुशाई है मंजिल तलाश कर, पहाड़ों की चट्टानों में तलाश कर। Dear teens, their parents, teachers and friends, I, Mr. Sadiq Sheikh, the principal and an English teacher, here from the Iqbal Union High School, situated in Godhra city of Gujarat in India. Ours is a secondary and higher secondary school with common and science streams. The school was established in 1944. At present, 1200 above students have been studying in 21 classes and 35 above teachers have been teaching different subjects. The government provides grant to run the school. Today, I would like to let you know about a lesson from the textbook of Standard 10 English. The title of the lesson is Tune Up O Teens. An English teacher of this school, Mr. Bashir Hatibai, assisted by Mr. Matinuddin Sayyed, has dramatized this lesson with the involvement of the students of class 10 from this school only. Friends, many a times teens face different problems regarding their health and education. In this drama, the teens represent their problems before different counselors and get their solution. The message of the drama is where there is a problem, there is a solution. I hope that the drama will prove useful and beneficial to the teens and their parents. So it's my humble recommendation to one and all to watch this drama till the end. Thanks a lot. Now let's enjoy the drama with the different phenomena of the school. Problems of teens and parents at a glance. रिटेंशन प्रॉब्लम, 7 घंटे की पढ़ाई, कुछ याद नहीं। शेयरिंग प्रॉब्लम, टीनेजर्स मेरे अपने बच्चे मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे। एग्जाम प्रॉब्लम, कैसे तैयार करें अपने आप को बोर्ड एग्जाम के लिए। एग्जाम प्रॉब्लम। डाइट प्रॉब्लम,
पेरेंट्स की चाहत और हमारी चाहत और। स्टडी है साइड पर, हाथ में है मोबाइल, सामने है टीवी और बाकी का वक्त खेलकूद। क्या करें इन बच्चों का? किसी का प्रॉब्लम रिटेंशन तो किसी को एग्जाम टेंशन। अपना प्रॉब्लम सबसे अलग, पढ़ाई में नहीं मेरा टेंशन। पढ़ाई में 1% रुचि नहीं, अब बताओ इसका सॉल्यूशन। Looking for solutions, please watch this video. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Good morning everybody. On behalf of Anand Vihar School, I Anuj Bhatt, the coordinator of the Career and Counseling Cell, welcome you all to this seminar. Bring out your best to counsel the students and their parents. We are happy to with us on the panel Dr. Nasir Mansoori, a practicing clinical psychologist, Dr. Mrs. Shelat, a prominent educationist in Gujarat, Dr. Manju Shroff, a well-known dietitian, and Professor Ray Mickey, who is online from University of Edinburgh, would take your question and solve your queries on study habits preparing for the exams. May I request the principal of the school, Mr. Sudhir Shah, to introduce and welcome the guests. Honorable dignitaries on the dais, parents and students, good morning to all present here. Though it's winter now, many parents and students might be perspiring with the thought of exams approaching in March. Am I right? જવાબ નથી મળી રહ્યો. ગુજરાતીમાં સમજાવું? બોર્ડ એક્ઝામના વિચારોથી પરસેવો છૂટી રહ્યો છે? It's okay. It is observed that unanswered questions of the students and expectation of the parents not only lead to stress but also create apathy and boredom for studies. The purpose of this seminar is to guide parents and students and come out with the possible do's and don'ts during studies and exams. I am indeed happy to welcome Dr. Nasir Mansoori, a practicing clinical psychologist from Vadodara. Dr. Nasir Mansoori has been associated with Lotus Group of Schools for 13 years and helps hundreds of students and parents every year. Dr. Mrs. Shelat is an eminent educationist, author and teacher trainer, and we are indeed fortunate to have her as one of the academic advisors to our Anand Vihar School. It is truly said that special activities demand special food habits. There is a growing concern over what we eat these days. Many of you would doubt what food habit has to do with the study habits and performance in the exam. You will come to know some interesting facts while interacting with Dr. Manju Shroff, a well-known dietitian. In today's globalized world, distance is hardly a barrier in communication. We have Professor Ray Mickey, online from University of Edinburgh, who may bring in his international experience working with students and parents. I welcome you all, and without any further delay, I now invite students and parents to raise questions. All the best. देखा बशीर साहब, ये प्रिंसिपल सुधीर शाह साहब सब कुछ इंग्लिश में बोल के चले गए। अरे कोई बात नहीं साहब, इंग्लिश में बोला तो सब कुछ ठीक ही होगा। हाँ वो भी सही है। अच्छा बशीर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो अभी सेमिनार हुआ ब्रिंग आउट द बेस्ट, उसका मकसद यानी पर्पस क्या है? अरे सैयद साहब, ये तो सीधी सी बात है। पर्पस तो एक ही इनका, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सही मशवरा देना, उनका सही काउंसलिंग, दोनों का सही काउंसलिंग करेंगी ये, इन्हें सलाह देंगे जी। बस यही मकसद है इनका। ये तो बहुत सही है। हाँ, ये तो मैंने सुना है साहब, ये सेमिनार जो हो रहा है इसके बारे में ये सुना है कि इसके ज़रिए बच्चों के जो लर्निंग प्रॉब्लम्स है, याद न रहने के, पढ़ने के, रिटेंशन के प्रॉब्लम्स, इनके डाइट्स के प्रॉब्लम, खाना जो खाते हैं कौन सा खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए,
उसके बाद जो पेरेंट्स से बच्चे इंटरेक्ट नहीं करते, शेयर नहीं करते, हाँ शेयरिंग नहीं करते, वो उसको कैसे बच्चों को समझाया जाए कि पेरेंट्स के साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करो। पेरेंट्स आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। टीचर्स एंड पेरेंट्स वही आपके सही दोस्त हैं और वही आपको सही रास्ता दिखाने वाले हैं। तो इस बारे में सेमिनार में बहुत अच्छा बताया गया है और आपने देखा भी है। सैयद साहब, ख़ास तौर पर तो मैं जो है टीचर्स, स्टूडेंट्स, टीनेजर्स और हमारे पेरेंट्स इनके जो हैं, इन सब को पहले तो ये बता दूं कि ये वीडियो बनाने में हमारे बच्चों ने, टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। तो इसे पूरा देखा जाए। इसमें हमने जो है ये इंग्लिश डायलॉग से स्टूडेंट का क्वेश्चन और इसका काउंसलिंग जो किया है काउंसलर ने, तो वो इंग्लिश में है। तो हमने क्या किया है कि इसको इंग्लिश डायलॉग के बाद इसके साथ वीडियो कनेक्ट किया, मतलब एक वीडियो, और वो वीडियो बच्चों ने ड्रामेटाइज किया है। बड़ा अच्छा है वो, उसी के कंसर्निंग ड्रामेटाइज किया है। तो इसको ख़ास तौर पर ध्यान से देखिए, 2 फ़ायदे होंगे, अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे और साथ साथ जो है मैं अपनी ज़िंदगी में भी उनको काम में आएगा। ये तो सभी से मैं रिकमेंड करता हूँ कि ख़ास तौर पर वीडियो को पूरा देखें और लोगों को, ख़ास तौर पर पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को और टीचर्स को ये दिखाया जाए। ख़ास स्टैंडर्ड 10th वाले ख़ास देखें। सही है, स्टैंडर्ड 10th। हाँ, अभी बोर्ड एग्ज़ाम में भी उनको काम में आएगा ये। बिल्कुल काम में आएगा और बड़ी मेहनत करिए बच्चों ने, देखें। तो देखते हैं वीडियो। Welcome back to the seminar Bring Out Your Best. Hello sir, I am Bharat from Standard 10. My question is to Dr. Mansoori. Sir, I read almost 6 hours a day. In spite of this, I hardly remember anything at the end of the day. Even my mom gives me bread tonic regularly. But how can I improve my retention? Bharat, though you have raised this question, you are not the only one who faces this problem. I am sure there are many here who might be in the same question. Students, tell me, how many of you had the same question? Alright. Have you heard of the Chinese proverb? I hear and I forget, I see and I remember, and I do and I understand. I don't understand that. Just tell me what should I do so that I don't forget. See, there is no fixed method of improving retention. However, you need to identify the way in which you learn. Let me clarify it. There are different learning styles. You learn by listening, writing, drawing, flow charts and diagrams, by discussing, by reflective thinking, and so on. You need to identify which style suits you the best for different subjects. For example, to write an essay, you brainstorm ideas and create a web, followed by arranging the ideas logically and constructing meaningful sentences. By doing so, you are adopting more than one style of learning that will help you remember for longer duration, that will help you in improving retention. And Bharat, now stop taking brain tonics. They simply do not work anyways. Wow, that sounds great. I wasn't aware of it. Thank you, sir. अरे सैयद साहब, ये डायलॉग्स तो पूरे की पूरे इंग्लिश में हैं। इसे अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए आप कुछ लेकर आए हो, इजीली वो समझ सके? जी हाँ बशीर साहब, मैं वीडियोस लाया हूँ और वो वीडियोस उन बच्चों के लिए ख़ास हैं जो समझने में या याद रखने में जिन्हें तकलीफ़ पड़ती है। तो आइए देखते हैं रिटेंशन से रिलेटेड वीडियोस जो बच्चों ने खुद एक्ट करके बनाए हैं। चलो जल्दी से दिखाओ। चलिए। अरे पांडे जी, क्या कर रहे हो? दिन रात रीडिंग रीडिंग रीडिंग। अरे खान सर, इतनी रात हो गई, अभी तक आप सोए नहीं? चलो आओ बच्चों की मुलाकात लेते हैं। बेटा राज। ओह सर, आप? सर आप अभी तक सोए नहीं? मुझे तो एक प्रॉब्लम ने सोने नहीं दिया। आपको क्या प्रॉब्लम है? बेटा, स्टूडेंट का प्रॉब्लम वही टीचर का प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट का दुख वही टीचर का दुख होता है, और स्टूडेंट की खुशी में ही हमारी खुशी होती है।
खैर बताओ क्या प्रॉब्लम है और एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? वही तो प्रॉब्लम है, क्या करूं सर, 7 घंटे पढ़ाई करता हूँ, कुछ याद नहीं रहता। देख लो नोट्स, सब रट्टा मार दिया था, 70% इसमें से भूल गया हूँ। यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने घर से ब्रेन टॉनिक भी दिया है, दिन में 1 बार नहीं 2 बार ले रहा हूँ, और दूध के साथ बादाम भी ले रहा हूँ, कुछ हासिल नहीं होता। मैं तो बहुत टेंशन में हूँ। होता है, ऐसा होता है। चलो आओ मेरे साथ। गौर से देखो फैज क्या कर रहा है, देखा? गौर से देखो विराट क्या कर रहा है, देखा? जी सर। चलो आओ। अब देखो मुर्तजा क्या कर रहा है, देख रहे हो? जी सर। ये आप ही के फ्रेंड्स हैं? जी सर। देख रहे हो? जी सर। क्या कर रहे हैं वो लोग? कुछ बातें कर रहे हैं। क्या लगता है खान सर, इस बच्चे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? असल में पांडे जी, इन्होंने सिर्फ एक जो तरीका समझ रखा है लर्निंग के लिए, रट्टा मारना, वही सिर्फ एक तरीका नहीं है। मैंने इनको कई तरीके दिखाए। आपने देखा फैज क्या कर रहा था? वो कुछ वीडियोस देख रहा था, उसे वीडियोस के जरिए याद हो जाता है। फिर आपने देखा विराट क्या कर रहा था? वो कुछ सुन रहा था, वो लेक्चर सुनता है तो उसे याद हो जाता है। फिर आपने मुर्तजा को देखा, वो क्या कर रहा था? वो कुछ लिख रहा था, उसे राइटिंग के जरिए याद हो जाता है, समझे? और आपके जो फ्रेंड्स थे वो बातें नहीं कर रहे थे, वो डिस्कशन कर रहे थे। वो किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं तो उन्हें वो याद हो जाता है। इन तमाम तरीकों से ये साबित होता है कि आपने जो सिर्फ एक तरीका समझ रखा है रट्टा मारना, वही सिर्फ एक तरीका नहीं है, समझे? अब मैंने आपको कई तरीके दिखाए, अब आप देख लो आपको कौन सा तरीका सूट होता है, आप पे कौन सा तरीका उचित होता है। उस तरीके से आप लर्निंग करना शुरू करो। और हाँ, आपको ब्रेन टॉनिक तो लेना ही नहीं है, अब दूध लो थोड़ा, सुबह शाम थोड़ा दूध लो, वो सेहत के लिए अच्छा होता है, समझे? टेंशन फ्री हो जाओ और आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब आप भी आराम कीजिए। अब आप समझे, लर्निंग के लिए सिर्फ रट्टा मार स्टाइल एक स्टाइल नहीं है। लर्निंग के लिए वॉचिंग वीडियोस यानी कि वीडियोस देखना, मूवीज और सीरियल्स के नहीं, एजुकेशनल वीडियोस देखना, लिसनिंग यानी कि सुनना, म्यूजिक और सॉन्ग्स नहीं, एजुकेशनल क्लिप सुनना, राइटिंग यानी कि लिखने से भी लर्न हो सकता है, डिस्कशन यानी कि अपने फ्रेंड के बीच कोई एक टॉपिक पे डिस्कशन करना। यह तमाम ट्रिक्स है लर्निंग के, इसमें से आपको जो सूट करता हो वो आप अपनाइए और आगे बढ़िए। ऑल बेस्ट। Welcome back to the seminar Bring Out Your Best. Hello Dr. Mrs. Shelat. I am Mrs. Virat Trivedi and my son Shalin is in standard 9. He spent too much time in playing games and watching TVs, and because of that his study suffers. What would you advise him at this juncture? Hello ma'am, is your son present here? Well, it is quite normal at this age for students to get tempted to play and watch TV. However, there should be a time limit for the same. What I personally feel is total avoidance of games and TV is not the solution. In fact, that is cruel and unnatural. Rather, parents should make sure that there is a balance between study and play hours. Games, music, and entertainment are quite essential for physical and mental health. They help reduce stress. Thank you, ma'am. अरे बशीर साहब, कहाँ खोए हुए हैं? सैयद साहब भी ये सोच रहा था, मिसिस विराट त्रिवेदी का जो प्रॉब्लम है अपने बच्चों को लेके,
कि भाई उनके बच्चे जो हैं ज़्यादातर एंटरटेनमेंट, खेल कूद, मोबाइल वगैरह में ही लगे रहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ये तो पूरा डायलॉग इंग्लिश में है, अपने बच्चों को समझाना, अब क्या करें इसके लिए? अरे अपना ने बनाया तो है साहब, इसका वीडियो बनाया है, आप भूल गए? अच्छा तो दिखाइए। मैं तुझे सुबह से देखता हूँ, मोबाइल से थकता है तो टीवी पर आता है, और टीवी से थकता है तो बाहर खेलने चला जाता है। पढ़ाई में तेरा 1% भी ध्यान नहीं है। आइंदा अगर कल से तूने फोन को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा, और अगर बाहर खेलने गया तो पाँव, और अगर रिमोट को हाथ भी पकड़ा तो अरे पिताजी रहने दीजिए, अब तो अल्फाज भी नहीं मिल रहे। अरे मास्टर जी, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। क्यों, क्या चल रहा है? बाप बेटे में किस बात का झगड़ा है? ये मेरा लाडला और आपका चहीता पढ़ाई के अलावा सब कुछ करता है। मोबाइल और टीवी जैसे उसके रगों में दौड़ता है। सपने में भी उसको खेलकूद ही आता है। मैं तो इससे बहुत हैरान परेशान हो गया हूँ। मास्टर जी, मैंने उसको भी एक धमकी दे दी है, जो भी आपने सुन ली है। मिश्रा जी, पहले आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए यहाँ पे। बेटा रवि, अपना फोन दो ना सर। बढ़िया है। बेटा रवि, अब तुम हमारे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी सर। हाँ मिश्रा जी, अब इस उम्र में टीवी, मोबाइल फोन, खेलकूद, इन सब का खिंचाव और आकर्षण आम है, यानी कॉमन है। अब ये बच्चे अपना नफा नुकसान तो कुछ समझते नहीं। इस कंडीशन में पेरेंट्स को थोड़ा समझदारी से काम लेना है, यानी इस चीजों का टोटल अवॉइडेंस यानी पूरी तरह दूरी इसका समाधान नहीं है। बच्चों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेलकूद और मनोरंजन का होना बहुत जरूरी है। आपको प्यार से रवि को अपना दोस्त बनाकर इतना ध्यान रखना है कि पढ़ाई के टाइम में और खेलकूद के टाइम में बैलेंस रहे। आपको रवि को अपना टाइम टेबल बना देना है। इससे क्या होगा कि रवि पढ़ाई भी शौक से करेगा, खेलकूद भी मिलेगा, मनोरंजन भी इसको मिलेगा, और आपकी बात भी मानेगा। मुझे सही और एक मुनासिब तरीका समझाने के लिए बहुत शुक्रिया। अरे बेटा रवि, जी सर। चाय मंगाई है? जी तैयार है, ले आओ। Welcome back to the seminar. Bring out your best. Hello everyone, I am Mrs. Suhani Mehta. I am not sure whom to ask this question. I am facing a different problem. My daughter seems to be enjoying her studies but hardly shares anything on what happens at school and her studies. As parents, we try to ask her so many times, but she avoids discussing the school at home. I think this question goes to Dr. Meki, as he must have faced similar question from British parents back home. Thank you, Anuj. I hope I am audible over that. And yes, I like this question. If sharing is missing, both children and parents are responsible. Sharing is glue that binds a family together. Generally, adolescents at this age find it uncomfortable to share all details related to their lives. As parents, we must consider these and decide our response to the sharing. Our negative response and preaching discourage children. However, children must read the intention of parents. Not sharing anything may lead to serious problem. It's always a pleasure to interact with the students and parents, Anuj. My best wishes to the students. Have a bright future ahead. अरे सैयद साहब, वो देखा आपने ब्रिंग आउट द बेस्ट जो सेमिनार अभी हुआ ये आनंद विहार स्कूल के अंदर? हाँ, इसके अंदर जो है स्टेज के ऊपर तो अपने काउंसलर्स बैठे हुए थे, जी, लेकिन ऑनलाइन डॉक्टर रे मेकी फ्रॉम यूनिवर्सिटी
एडिनबर्ग से दिखाए गए, क्या टेक्नोलॉजी है साहब। जी हाँ जी हाँ। और ये टेक्नोलॉजी को लेकर इन्होंने भी जो है ऑनलाइन जो है काउंसलिंग की और पेरेंट्स को, बच्चों को ये दिखाया गया और काउंसिल किया गया। इसमें ख़ास तौर पर आपको कुछ याद रहा हो तो बताइए वीडियो के ज़रिए। इसमें ख़ास तौर पर रे मैकी ने किस पर जो है एम्फोसिस किया है। ये रे मैकी साहब जो है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के, उन्होंने शेयरिंग जो पेरेंट्स और उनके जो बच्चे हैं, औलाद हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन, बातचीत नहीं होती, अच्छा, उसके मुतालिक बहुत अच्छी उन्होंने राय मशवरा दिया है। और वो बच्चों को वीडियो फॉर्म में जो हमारे बच्चों ने जो एक्ट किया है ना, वो तो और काबिल तारीफ है। अरे तब तो दिखाओ ना सैयद साहब, जल्दी से दिखाओ। लाइए देखते हैं। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे डॉक्टर नासिर मंसूरी का मकान कहाँ पर है? जी बताइए, कैसे आना हुआ? मैं मेरे बेटे शाहिद के लिए आया हूँ। बेटा अब थोड़ी देर बाहर गार्डन में खेलिए, मैं आपको बुलाता हूँ। ओके सर। जी बताइए। मेरा बेटा शाहिद स्टैंडर्ड 10 में है, इंटेलिजेंट भी है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी करता है, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, वो अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी स्कूल की बातें हम पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करता है। इसका क्या सॉल्यूशन है सर? देखिए, इस वक्त में टीन एजर्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वे अपनी पर्सनल बातें और प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते। इसके लिए जिम्मेदार पेरेंट्स और बच्चे दोनों हैं। शेयरिंग तो फैमिली को जोड़ने में ग्लू यानी गूंद का काम करती है। तकलीफ़ ये है कि पेरेंट्स की हर वक्त की नकारात्मक प्रतिक्रिया और उपदेश बच्चों को पेरेंट्स से दूर करते रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे अपनी पर्सनल बातें और प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने के बजाय ऐसे लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनके साथ उन्हें शेयर करना नहीं चाहिए। इसका नतीजा बहुत ख़तरे वाला होता है। इसके लिए मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स को चाहिए कि वे अपनी हर वक्त की नकारात्मक प्रतिक्रिया और उपदेश देने के बजाय अपने बच्चों का विश्वास जीतें। और मैं टीन एजर्स को भी मशवरा दूंगा कि वे अपनी पर्सनल बातें और प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। बेटा जैद, वो बच्चा जो बाहर खेल रहा है उसको बुलाओ और हमारे लिए चाय का इंतज़ाम करो। बेटा शाहिद, कैसे हो? अच्छा हूँ। आपके पापा आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, आप इंटेलिजेंट हो, अच्छे नंबर लाते हो, लेकिन उन्होंने आपके एक कंप्लेंट की कि आप अपनी पर्सनल बातें और प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते। देखिए, इस दुनिया में बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हमदर्द उनके माँ बाप हैं। वो कभी आपका नुकसान नहीं करेंगे, समझे? तो आप अपनी पर्सनल बातें और प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, समझे? थैंक यू सर, आगे से मैं ऐसा ही करूँगा। Welcome back to the seminar Bring Out Your Best. सर, मेरा नाम मुर्तुजा है। मैं प्रोफेसर रेमेकी से एक प्रश्न हिंदी में पूछना चाहता हूँ। ओह, मैं प्रोफेसर रेमेकी से पूछ लेता हूँ कि वो हिंदी में बात करेंगे। मुर्तजा wants to ask a question in हिंदी। या इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की वजह से हिंदी आती तो है पर जाती नहीं, मतलब समझ लेता हूँ। बोलने में रुक रुक कर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल लेता हूँ। डियर मुर्तजा, आप हिंदी में पूछ सकते हैं। सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बहुत कोशिश भी की, लेकिन मैं नाकाम हूँ। तो आप मुझे उसका सॉल्यूशन बताएं। जोरदार तालियां। यह प्रॉब्लम ओनली मुर्तजा का नहीं, अभी की सिचुएशन में तो ये पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। अभी थोड़े टाइम पहले आपके गुजरात के न्यूज़पेपर में सर्वे दिया था
उस न्यूज का टाइटल था गुजरातના બાળકોને ભણવું નથી। आप सुनिए सॉल्यूशन। डियर, किसी भी अच्छे काम के लिए मन जल्दी मानता नहीं, उसे मनाना पड़ता है। अब मैं कुछ टिप्स देता हूँ, सभी स्टूडेंट्स इस टिप्स को लिख लें। एजुकेशन में इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले एजुकेशन के बेनिफिट को एक बार नहीं कई बार सुनो, पढ़ो और फिर उसे अपने फ्रेंड में, घर पर, हर जगह लोगों को एजुकेशन के बेनिफिट सुनाओ। सेकंड, जिधर एजुकेशन का एनवायरनमेंट बना रहता है ऐसी प्लेसेस पर जाओ, वहाँ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करो। थर्ड, ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो मैक्सिमम टाइम स्टडी करते हो। अगर रीडिंग राइटिंग से बोरिंग फील करते हो तो टॉपिक रिलेटेड वीडियोस या ऑडियोज यूज करो। पर हाँ, याद रहे एजुकेशन के वीडियोस मूवीज और सीरीज के नहीं। अगर ये सब करके भी एजुकेशन में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है तो अपने आप से कहो, देख तू अगर होनर्ड, पीसफुल और फ्री लाइफ यानी इज्जतमय, शांतिमय और आज़ादी वाली लाइफ जीना चाहता है तो अभी भी वक्त है एजुकेशन हासिल कर ले, वरना ज़िल्लत, बेचैनी और गुलामी के लिए तैयार हो जा। ओके, नाउ आर यू satisfied with my answer? Yes, sir. I am satisfied with your answer. Thanks a lot. Next question from the students now. So, maybe I am feeling hungry right now because my parents don't allow me to eat what I enjoy. I think this question is obviously for the dietitian. Dear, can you tell us what you enjoy eating most? And tell your name also. My name is Priyanshi and oh madam, I love pizza with double cheese, die for dabeli with butter or cheese, dream for burger. My favorite pastime is crunchy wafers with cold drink. But my mom serves me hospital khana. Is there any relation between studies and the food I eat? I really wonder. Priyanshi, you look real foodie. I like your spontaneity. Dear, yes, there is a direct relation between the food you eat and activities of your brain by metabolism. Heavy food directs the blood flow to the digestive system, resulting into slowing down of the brain activity. You must have felt sleepy, lazy, drowsy after eating heavy meals. Doesn't this affect your studies? Ultimately, you require an active brain for studies. Rather than going for fatty foods, prefer to take light and easy to digest food with enough of soup, juice, dal, milk, chas, lassi, etc. Eat raw vegetables and fruits a lot. Do not overeat. It's not good for health in the long run. Remember, the student who eats light becomes bright. सैयद साहब, टीनेजर्स के बारे में अभी कहें तो इनके मसाइल, इनके प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं। इसमें ख़ास तौर पर अभी जो है डाइट का मसला इनका बहुत बड़ा मसला है साहब। ये कुछ समझते ही नहीं, जंक फूड, बस ये जंक फूड को न जाने क्या समझते हैं, बस वही जो है ये बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह हेल्थ ख़राब करते हैं अपनी। वैसे तो डाइट की आपको और मुझे दोनों को बहुत ज़रूरत है साहब। कोई बात नहीं, हम भी डॉक्टर मंजू श्रॉफ से मिल लेते हैं। और अभी क्या करें वो बताओ आप मुझे। अभी वो उन्होंने जो गाइडेंस दिया था इंग्लिश में जी, उसका बच्चों ने इसमें भी एक्ट किया है। अच्छा, ताकि जो मास है, पब्लिक है, लोग हैं जो ज़्यादा इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं, उनको अच्छे से समझाने की जो कोशिश बच्चों से हमने करवाई और बच्चों ने जो की है, सही है, वो उन तक पहुँचे। तो आइए देखते हैं अब। तो दिखाओ डाइट वाला हम भी देखते हैं। आइए देखते हैं। सीमा, ओ सीमा,
सुनती ही नहीं है। लो, हम जाने सीमा में भी तो पढ़ाई कर रही है, लेकिन लाडली तो आराम में है। सीमा, ए सीमा, उठ। जी मम्मी। कहीं बार कहा है तुझे ये हैवी फूड, जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर ये सब मत खाया करो। इन सब का पढ़ाई पर गहरा असर पड़ता है, पर अपनी तो मानता ही कौन है। मम्मी, मैं भी कई बार कह चुकी हूँ, पिज्ज़ा डबल चीज़ के साथ, दाबेली बटर के साथ, बर्गर, वेफर्स और ये सब हजम करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स पीती हूँ। अब भला खाने को पढ़ाई के साथ क्या संबंध? ठीक है, अभी मैं कुछ भी समझाऊंगी तो तुझे भाषण लगेगा। चल आ, तुझे मैं डाइटिशियन के पास ले जाती हूँ, उनका तो मानेगी ना। डॉक्टर मंजू श्रॉफ हाजिर हैं? जी हाजिर हैं। हेलो मैम, मेरी कमी। मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, मेरी मम्मी को मेरे खाने से है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? उससे ही पूछो। मैं एक स्टूडेंट हूँ मैम, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि पढ़ाई को खाने के साथ कोई संबंध है? पिज्जा बर्गर खाना कोई बुरी बात है? ऑफ कोर्स, खाने को सिर्फ पढ़ाई के साथ नहीं, हमारी सब एक्टिविटीज के साथ संबंध है। हाँ, लेकिन पढ़ाई के साथ गहरा संबंध है। हैवी मील्स यानी कि भारी खाना खाने से आपको नींद आएगी और सुस्ती महसूस होगी। डियर, अगर आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहो, खुश रहो और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सको, तो उसके लिए लाइट फूड लो। लाइट फूड यानी कि सूप, जूस, दाल, मिल्क, छाछ, लस्सी वगैरह वगैरह। हरी सब्जियां और फ्रूट्स ज्यादा खाओ। याद रखो, पढ़ाई के लिए ब्रेन का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, और एक्टिव ब्रेन के लिए लाइट फूड जो जल्दी हजम हो सके वैसा खाना खाओ। स्वस्थ रहो, खुश रहो। हाँ, अब मुझे समझ में आया, और आप भी सुन लीजिए, खाने को पढ़ाई के साथ बहुत गहरा संबंध है, इसलिए हल्का खाना खाओ और तेजस्वी बनो। चलो, शुक्र है कुछ तो समझ में आया। चलो मम्मी, फ्रूट्स लेके चलते हैं। हाँ श्योर। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। Welcome back to the seminar. Bring out your best. Hello, Dr. Mansuri sir. I am Kandarp. I want to ask a question. Okay, Kandarp, you are allowed. I read somewhere, tune up yourself for the board exam. Could you explain what it means? Dear, you seem to be in 10th or 12th. Tune up refers to preparing your body and mind for a particular task. When it comes to tune up for examination, you need to know how your body and mind work in harmony. You should identify your strength and weaknesses in the first place. Observe yourself for a week or two. Always remember that your strengths are your assets. Do not think much about your weaknesses. It is your strength that will help you cope the exams. Secondly, your body and mind tune up to school timetable before you receive the board exam schedule. Once you receive the board exam schedule, prepare a new timetable based on your energy level. Identify the best time when your energy level is high. Try to match it with the time slot for examination. It is important to relax to tune up your body and mind. You may follow simple relaxation techniques like pranayam, yogasan, stretching, listening to light melodies music, taking a walk of about 10 to 15 minutes at a suitable time, or having a cup of green tea. You can even spare some time to talking your friends and parents. Maintain a cheerful mood and don't work in frenzy. Got it? Wish you all the best. Yes, sir. Thank you, sir. बशीर साहब जी फरमाइए। ये आखिरी वीडियो में क्या दिखा रहे हैं आप? आखिरी वीडियो में साहब कंदर्प का प्रॉब्लम है। कंदर्प का प्रॉब्लम है बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें। तो
इसका डॉक्टर मंसूरी ने जो काउंसलिंग किया है बहुत अच्छा काउंसलिंग है साहब, कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना। तो वो हिंदी वीडियो बनाया ये अपने, तो दिखा देते हिंदी वीडियो ही। देख अर्जुन, वो डॉक्टर नासिर मंसूरी है। अरे हाँ इकबाल, वो डॉक्टर नासिर मंसूरी है। वो तेरा क्वेश्चन था ना, चल पूछ लेते हैं। हाँ चलो। डॉक्टर नासिर मंसूरी, एक प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। जी बताइए, बैठिए। सर, मैंने कहीं पढ़ा है कि बोर्ड एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करो। इसका क्या मतलब है? इसके लिए मैं एक पेन का सेट ले आया हूँ, हर एक रंग का, एक बोर्ड ले आया हूँ और एक कंपास बॉक्स भी ले आया हूँ। क्या ये तैयारी हो गई? अरे ये तो बहुत आसान है। किसी भी काम के लिए आपके मन और शरीर दोनों को तैयार करना। जैसे अभी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार होना है, तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका मन और शरीर दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं। इसके लिए आप आपकी ताकत और कमज़ोरी को पहचानो और हमेशा याद रखो, आपकी ताकत आपका धन है। अपनी कमज़ोरियों की तरफ ध्यान मत दो, समझे? और हाँ, जब आपके पास आपकी बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल आए तो आप अपनी ताकत अनुसार एक नया टाइम टेबल तैयार करो, क्योंकि अब तक आप अपने स्कूल के टाइम टेबल के साथ अनुकूल थे। और जब आपको मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखना है तो इसके लिए आपको आराम की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए आप रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, थोड़ा वॉकिंग कर लो, हल्की सी एक्सरसाइज कर लो, अपने माँ बाप के साथ बैठो, उनके साथ अपनी बातें शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो, घंटों भर नहीं, समझे? थोड़ी देर, जिससे आपका मन फ्रेश हो जाए। प्रसन्न मन के साथ काम करो, जुनून में नहीं। अब समझे? हाँ, मैं अच्छे से समझ गया सर। थैंक यू। Welcome back to the seminar. Bring out your best. Students, did you enjoy the program? This tells all. I think it's time to conclude our program. It's impossible to express our gratitude in words. However, I am indeed thankful to all the guests who made it convenient to spare time from their busy schedule. I am sure that not only students but parents also gained a lot. Hope we all remember the tips given by the expert and follow them as much as we can. Best wishes to all. हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। टीन्स को अपने सॉल्यूशन मिल गए और पेरेंट्स को अपने। तो बने रहिए हमारे साथ आने वाले एजुकेशनल वीडियो के लिए बहुत जल्द। Thanks for watching this educational video.